Okay, so children, we are going to discuss some case studies and MCQs related to the topic which we have finished yesterday. Okay. First of all, question number 3, I'm going to read. It is a case study question, so we will read from the bottom. The company is facing problem of procedural delays and inadequate recognition to creative talent. Suggest करना है आपने how the organization can overcome the problem. ठीक है, आपने सजेस्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन. देयर इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब्स विद अ क्लियर एंड डिफाइंड अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंपनी. नाम से लग रहा है सो फार कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट कहता है कि पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स. ये कल आपको एग्जांपल दी थी. In some organization, you are not allowed to talk to each other, and when you are not allowed to interact, आप अपने psychological needs को fulfill नहीं कर पाओगे. As a result, the company is not able to adapt to the changing business environment. इसमें क्या है, लोग situation change हो रही है and people are not able to cope up because they are not discussing problems. अगर कोई है तो उनका solution discussion से ही निकलता है, and they are not allowed to discuss, they are not allowed to talk. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई. द वर्क फोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन. उनकी सोशल इंटरेक्शन है ही नहीं. इससे क्या हो गया, द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीजरल डिलेज एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट. सो हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम? ओके काशवी, यस यू कैन आंसर. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्या करना चाहिए हमें? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए. We should adopt informal organization. Okay. And then उसके आगे next इन्होंने लिखा informal organization से क्या होगा? The problems which the company is facing, that they are not able to interact, they will be able to interact, they will be able to discuss, and problems की solutions निकलने start हो जाएंगे. अब आगे उन्होंने बोला 2 benefits बताओ. जो आपका सजेशन है, आपका सजेशन क्या है? इनफॉर्मल. तो इनफॉर्मल के 2 बेनिफिट्स बता दीजिए. एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू आंसर. ओके केतन, यस केतन. Ma'am, the worker will be motivated, and the second one, there will be faster communication, and there will be a correct feedback. Yes, एक तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी, एंड सेकंड वन इज दैट हमारी जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो पाएंगी. फुलफिल होने से द मोटिवेशन लेवल ऑफ द वर्कर्स विल गो अप, लाइक दे विल फील मोटिवेटेड विद द हाई मोरल, दे विल बी परफॉर्म इन अ बेटर वे. ठीक है जी. सो लेट्स कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये पूरे चैप्टर के हैं, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के थे. संयम, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर खड़ा करना था. ओके, अभी पढ़ने दो. फर्स्ट एमसीक्यू के लिए. The organization producing multi-product, they must adopt what? ये बड़ा इजी है. Yes, संयम. डिविजनल स्ट्रक्चर. Divisional structure, very good. More than one product, divisional structure. Next question. Uni-product manufacturing company, Anirudh. Functional structure. Functional structure. Uni-product means one product. Question number 3. For fast communication to get correct feedback, the following organization is suitable. Yes, Kavya Chawla. Kavya, I'm asking you to unmute. Okay, Kashvi, you can answer. Ma'am, informal. It is informal. Yes, informal organization is there. Okay. इसके बाद next question है, organization having plans of expansion and diversification should adopt. Okay, चाहत, you can answer बेटे. Where is चाहत? Okay, कन्ना बत्रा, आप आंसर करिए. Ma'am, divisional structure. Divisional structure, how is it possible?
मैम जैसे कोई बिग कंपनी है, उसने एक्सपेंशन करनी है फर्दर, तो मैम वो अलग ही डिपार्टमेंट बना देगा नई कंपनी का, जो आगे एक्सपेंड किया। A company having plans of expansion and diversification, आपको already मैंने बताया था उस दिन, if you want to launch some new product, तो which structure you must adopt? You must adopt divisional structure. ठीक है जी. Question number 5. Span of management refers to. Okay. Harshita. Just. सभी हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर हर्षिता घूम गई. ओके, मुस्कान से आन, यू कैन आंसर. मैम इसमें है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन मैनेजर. So this is the right answer. Number of subordinates who can be effectively controlled by one manager. This is span of management. Okay. Next is question number 6. If manager is overburdened, then he must use the following. अगर manager overburdened है, तो उसे क्या करना चाहिए? Options हैं. Okay, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी टॉपिक. No, skip this question. Question number 9. Informal organization depends upon. कल पढ़ा था ये पॉइंट. इनफॉर्मल किसके ऊपर डिपेंड करता है? No one. Himani. Okay, Himani, you can answer. मैम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Very good. Informal, formal में से ही निकल के आता है. First you are being placed together on the basis of formal organization. उसी में आप फ्रेंड्स बनाते हो. स्कूल में आपकी क्लास में who all will be there, ये स्कूल डिसाइड करेगा आपके सेक्शन में कौन कौन से बच्चे आएंगे. बट who will become your friend, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो फॉर्मल से ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मुलेट होता है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है? ओके, तमन्ना, यू कैन आंसर. मैम इनफॉर्मल. इनफॉर्मल इज बीइंग क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है जी. अभी कैमरा अपना ऑन कर लेना बेटे आंसर करने के लिए सब. ठीक है. द मैनेजरियल फंक्शन विच इनेबल्स रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. कौन सा है ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा है? तमन्ना, यू वांट टू आंसर? जैस्मीन. मैम ऑर्गेनाइजिंग. Organizing is the right answer. Jasmine, your camera is off. ऐसा क्यों? चलिए, delegation decentralization अभी किया नहीं है, इसको skip कर देते हैं. So now we are shifting to the question number 16. Who reports to whom is decided in the following step of organizing process. कौन सा step होता है वो? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करिए, किसने किसको रिपोर्ट करना है? हिमानी. Himani is not visible on my screen. Okay, Kavya Chawla, you can answer. मैम establish authority relationship. Establishing authority relationship या reporting relationship जो है one and the same thing उन्होंने लिखा इस तरह से. Answer is correct. Centralization वैसे पढ़ भी सकते. Centralization you all know, हमने पहले पढ़ा था ना principles of management में. What is centralization? Any one of you can answer. What is centralization? Hanji, no one. No one knows. Harshita Gandhi. Yes, beta, you can answer. मैम सी ऑप्शन. मेरे को सिंपल Separation. लैंग्वेज में बताओ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन. ऑप्शन मत बताओ. मैम हम जब जो लेवल्स डिवाइड कर देते हैं मैनेजमेंट के. This is not the right Organization. answer, bete. Okay, Manya, you want to answer? Manya. Centralization means power in hands of top level. Hanji, centralization means all the power is concentrated on the top level. Top level management is not distributing powers to the lower levels. So this is the right answer. तो अब इसकी ऑप्शन देखो कौन सी है. Retention. Retention means keeping the power in one, like एक बंदे के hand. Okay.
So first one will be the right answer. Retention of decision making authority, decentralization. Establishing reporting system leads to, reporting system अगर हो तो उससे क्या हो जाएगा? Okay, Kashvi can answer. Kashvi. Clarity in working relationship. Clarity in working relationship, there will be no chaos or doubt or confusion. Next, dividing work into smaller and manageable tasks. काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. हाँ जी. Okay, Ketan. Yes, बेटे, you can answer. Option B, identification and division. Identification and division of work is the right answer. Last is grouping of activities on in accordance to their nature. एक टाइप के वर्क को ग्रुपिंग कर देना. कनिका. Departmentalization. वेरी गुड, इट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. सेम टाइप के जो काम होते हैं हम उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स, थोड़ा सा अभी सोच के आंसर करना है, इसमें ऑप्शंस नहीं है. अश्विंदर, यू वांट टू आंसर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स? आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. Yes, ma'am. First is dash is the framework within which organizational activities are being performed. Organizational structure. Very good. Its answer is structure. Organizational structure is the right answer. क्योंकि वो framework जो होता है जिसमें सारे levels बताए जाते हैं उसको structure बोलते हैं. Number 2, strict rules and regulations are followed in what? Okay. अभी Himani, you want to answer? Himani. Formal organization. Formal organization is the right answer. Third question, most of the rumors are spread in. Okay, Sanyam. Informal organization. Informal is the right answer. Aditi is not there in the class. Okay, Ashwinder, you want to answer next one? The main purpose of dash is to reduce the workload of the managers. ये हमने करा नहीं अभी टॉपिक, इसको स्किप करते हैं. 6th point पढ़िए. Psychological and social needs are get satisfied in Ashwinder. Ma'am, informal. It is in informal. Okay. 7th one, functional structure focuses on dash specialization. Functional structure अगर हो तो कौन सी specialization आ जाती है? Okay, Sanya. Functional specialization. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है. फंक्शन पर्टिकुलर जो वो परफॉर्म करते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन. डिविजनल स्ट्रक्चर में कौन सी स्पेशलाइजेशन आ जाती है? केतन. मैम पिछले का आंसर ऑक्यूपेशनल नहीं था? हाँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर का. यस. फंक्शनल स्ट्रक्चर जब होता है उसमें क्या होता है? फंक्शंस होते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, उसके बेस पे डिपार्टमेंट बन जाते हैं. तो उसका आंसर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी हम उसको बोलते हैं, लेकिन जो सही टर्म है वो फंक्शनल ही है. ठीक है, जो अगर हम टर्म के ये करें, फंक्शनल इज द राइट टर्म. मीनिंग दोनों का सेम ही है, बट हमने यहाँ फंक्शनल वर्ड यूज करना है. डिविजनल स्ट्रक्चर. ओके, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. वेरी गुड. डिसेंट्रलाइजेशन हमने करा नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं आप. फर्स्ट वन, टू, पहले दो छोड़ दीजिए. थर्ड वन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज चाहत wants to answer. चाहत. Ma'am, false. It is false. Third one is false. How is it false? True बताइए क्या होना चाहिए फिर? Muskan Sian wants to say something. Muskan, I am asking you to unmute yourself. चलिए मैं बता देती हूँ. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड नहीं करती इनफॉर्मल पे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनफॉर्मल बनती है. सो इसमें ऑपोजिट लिखा होता तो ट्रू होता, दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन फॉर्मल. पहले फॉर्मल बनती है तो इनफॉर्मल होगा. हम स्कूल में आए,
हमारे स्कूल में क्लासमेट्स बने फिर फ्रेंड्स बने, पहले फ्रेंड्स बने उन्होंने अपना स्कूल तो नहीं ना खोला, या पहले फ्रेंड्स थे उन्होंने अपना कोई इंस्टीट्यूशन खोला, तो इट्स आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, as a result of organizational functional, the structure which will get created automatically. Fourth one, as a result of organization structure function, a structure gets created automatically. Anyone? Okay, Ketan wants to answer. Ketan, yes, beta. Ma'am, false. It's false. True कैसे true? How is it Ma'am, false? yes, ma'am. Ma'am, they said as an end result of organization function, a structure created automatically. But it is a structure is created deliberately for the end result, for achieving the end result. Which structure you are talking about? यहाँ formal की बात नहीं हो रही, ये किसकी Ma'am, बात कर true रहे हैं? false में तो यही होगा. ये they are talking about functional structure basically. I think यहाँ पे true हो सकता है। देखो, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में देयर इज कॉमर्स स्ट्रीम, देयर इज साइंस स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो ऑटोमेटिकली देयर डिपार्टमेंट्स विल बी फॉर्मुलेटेड, उनके डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे क्योंकि वो इस टाइप का काम कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बेस पे कहते हैं एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स वाला डिपार्टमेंट अलग, परचेज वाला, वो हम थोड़ी बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली भी बन जाएगा। अगर हम नहीं भी उनको क्लासिफाई करते कि दिस इज योर कॉमर्स डिपार्टमेंट, स्टिल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, दे विल गेट, सो इट्स आंसर कैन बी ट्रू, बट इट्स एक्चुअली अ वेग स्टेटमेंट, इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, तो जो तुम कह रहे हो वो भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। सीबीएसई कभी भी वेग स्टेटमेंट पेपर में नहीं डालती, so skip it, but for the time being whatever I have assumed it should be true. Question number 5, formal organization focus on work only and it ignores human relationships. Who will answer? Kavya. True. True, very good. Sixth one, who reports to whom is made clear in establishing reporting relationship step. कनिका, True. क्या बोला आपने? ट्रू बोला? सिक्स्थ का बेटे, सिक्स्थ वन। True. True, she is saying true. I'm not. Yes, true. It's true. Seventh, a network of social and friendly relationship creates informal organization. True. इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर ट्रू है तो आप थम्स अप कर सकते हो। Those who want to say true, they can raise their thumbs up. Okay, so it is true as per most of the students. Eighth one, span of management defines the responsibility area of management. True or false? True. काव्या, ट्रू कैसे हो गया भाई? काव्या को ट्रू लग रहा है। केतन को भी ट्रू लग रहा है। हाँ जी केतन बोलिए। मैम, इट्स ट्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ऑफ द मैनेजर नहीं होता बेटे, अथॉरिटी डिफाइन करता है। हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग अंडर यू, इट डिफाइंस योर एरिया ऑफ ऑपरेशन, बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात उन्होंने डिफाइन लिखा है ना, वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम थोड़ा डिटेल में चले जाते हो कि जब उसके अंडर इतने बंदे काम कर रहे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, दैट इज ट्रू। बट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंस, डिफाइन मींस उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डिफाइन तो ये नहीं ना करता, डेफिनेशन तो उसकी ये कहती है कि टेल्स अस द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर डायरेक्टली बीइंग कंट्रोल्ड और सुपरवाइज्ड बाय वन मैनेजर। काव्या, यू वांट टू से समथिंग? मैम बस कंफ्यूजन था, वो हो गया। ठीक है जी। ओके, ये जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं डिस्कस, दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, ये हमने पढ़ा ही नहीं, छोड़ दो। सोशल नेटवर्क,
A network of social responsibility that arises spontaneously due to interaction at the workplace. It is called as, okay, Harshita. Informal. It is Informal informal. organization. Right, right. Third one is, which of the following does not follow scalar chain? इसमें scalar chain follow नहीं हो रही है. केतन. Informal. Informal again. A tall structure. ये बड़ा important है कि ये मतलब सोच के करने वाला क्वेश्चन है. एक tall structure है तो उसका span of management कैसा होगा? Narrow होगा या wide होगा या no होगा या less होगा? Think and then answer. Tall structure. Shall I make a diagram for this? See, if there is, for example, one is CEO. Under the CEO, there are 3 persons working. Manager 1, manager 2, manager 3. And he is guiding, they are guiding. Directly workers are इनके अंदर 500. मान लो तीनों के अंदर कितने इतने वर्कर्स हैं. तो ये हमारा टॉल स्ट्रक्चर नहीं है. टॉल स्ट्रक्चर तब होगा अगर हम इन मैनेजर्स के अंदर, इसके अंदर हमने 3 सुपरवाइजर लगा दिए, उन सुपरवाइजर्स के अंडर फिर वर्कर, इसमें भी इसके अंदर सुपरवाइजर. तो जितना ज्यादा लेवल्स बढ़ते जाएंगे उतना टॉल स्ट्रक्चर होता जाएगा. आर यू गेटिंग इट? मोर एंड मोर लेवल्स विल लीड टू टॉल स्ट्रक्चर. जितने ज्यादा लेवल्स हैं उतना कम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है. यहाँ पे एक बंदे को सीधे 100 या 200 बंदों को देखना पड़ता था, बट नाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड. 150 का तो 50 इसको मिल गया, 50-50. So 50-50 workers are being divided among 3 supervisors. So the answer will be, okay, who will answer now? Prabjot. Narrow span of management. Sorry? Narrow span of management. Narrow span of management, because less workers will be supervised by one superior. Got it? जितना tall structure उतने कम बंदों को एक बंदे को देखना. जितना छोटा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो गया है. इट इज द, ओके, संयम वांट्स टू आंसर. यस संयम. Retention of decision making authority. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल. डेलीगेशन को छोड़ देते हैं. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन फिर से आ गई है, देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? Jasmine, you can answer, bete. Ma'am, C option, number of subordinates under a effective management. Span of management refers to number of subordinates under a superior. I think this should be the right answer. किसी और को कोई डाउट है इसमें? No. ठीक है. 8th वन, इसका एक्चुअली आपको मैं अभी बता ही देती हूँ एक बात. आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, जो 3 ऑप्शंस हैं वो ब्लैक कलर की और एक ऑप्शन जो है वो डिम कलर में है. दैट इज द राइट आंसर गिवन एज पर द बुक, जहां से मैंने पीडीएफ लिया है. आंसर्स आर इन द डिम कलर. दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, दे आर द आंसर्स एक्चुअली. बट हियर इन दिस क्वेश्चन, दिस इज एज पर माय नॉलेज, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. इन्होंने जिसको डिम किया है, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक दिस शुड बी द राइट आंसर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर. आपको भी यही लग रहा है? इसको वैसे एक बार मैं फिर से चेक करके आई लेट यू नो अगर इसमें कोई चेंज हुआ. सो फार सी इज द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो रूमर से बनता है, इनफॉर्मल, ऑलरेडी पता है. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज, yes, it is divisional structure. हाँ जी संयम. Ma'am, yes, divisional structure. What is divisional structure? Divisional organization. Explain करिए.
Ma'am, structure which is based on line of products. On the basis of the type of product. ठीक है जी. Last is grouping of activities on the basis of functions. So आंसर तो हमारी स्क्रीन पे है ही है. I want जो भी बच्चा आंसर करेगा वो एक्सप्लेन करेगा उसको. Okay, Ketan, you can answer. I mean, it is a functional structure. As in this, it is the organization is divided on the basis of functions. Functions. Which type of functions? Ma'am, purchase, sale, and production, etc. Marketing, human resource. Right. So that is the right answer. So that's all for today's class. Bete, this is your homework today. You are supposed to revise whole chapters so far. Jitna humne ab tak padh liya. One last topic is left: delegation, decentralization. That we will continue tomorrow. ठीक है? And after that, we will go for the case studies. Attendance form I have shared. You all have filled in the attendance.